Recently, Vinay Prakash Singh took over the charge as Secretary General of Asia Pacific Postal Union. तो ये अपना क्या है? This is the question which is given. Vinay Prakash Singh, Secretary General of Asia Pacific Postal Union. अब ये क्या करना है इसमें? ये एशिया पैसिफिक यूनियन के बारे में मालूम कर लेना, ठीक है? Yes. Let us go for the solution. अब एशिया पैसिफिक यूनियन क्या है? What is APPU? Intergovernmental organization. कितने मेंबर्स है इसमें? 32 members. कब क्रिएट हुआ? 1961. हेडक्वार्टर्स किधर है? Bangkok, Thailand. बैंकॉक, थाईलैंड। Thailand. ओके, अब रशिया मेजर जो कंट्री है। Yes. Russia is not the member of the union. Russia is not the member of the Union. Okay. Russia is not the member of the union. और क्या है? It is only restricted to यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। जो रीजन क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिस जो एरिया में काम करता, जो काम करते वही एरिया में इसका इन्फ्लुएंस चलता, ठीक है? अब हेडिंग क्या है? विनय प्रकाश सिंह, member of personnel postal, was elected to the secretary general and took over the charge of secretary general for tenure of कितने years? 4 years. 4 years. 4 और years. इसका सिंबल है, ठीक है? Okay. अब क्वेश्चन क्या है? The purpose of APPU is to promote cooperation in the field of postal services between member countries. क्या करेक्ट है ये ऑप्शन? The purpose is to promote cooperation in the field of postal service between member countries. Is statement correct? Yes. India, China, Bangladesh, Russia are members of APPU. नहीं, रशिया तो नहीं है member. Russia Yes, is not a sir. Member of APPU. Russia is not a member. So ये wrong हो गया ऑप्शन। Yes. तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो राइट आंसर क्या है? ANC. 4. ANC. A and C. The headquarter. Okay. The headquarters is Bangkok. ये भी करेक्ट है, Yes. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है? Yes. तो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, राइट? Yes. Yes. ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना? प्लीज रीड द सेकंड क्वेश्चन। Recently, NASA has announced the names of 4 astronauts who will be the first to go around the moon in over 50 years since the end of the Apollo missions. In relation to this, who will be the first woman to go around the moon? तो क्या है इसमें? रिसेंटली नासा जो है 4 एस्ट्रोनॉट्स का नेम अनाउंस करा। रिसेंटली नासा हैज अनाउंस 4 एस्ट्रोनॉट्स नेम will be the first to go to the moon in over 50 years. In over 50 years since the end of Apollo missions. 50 साल के बाद अपोलो मिशन खत्म हो गए थे 50 साल पहले, लेकिन अब नासा क्या है फिर से has gone, ठीक है? Now उसमें क्या पूछ रहा हूँ? Who will be the first woman to go around the moon? फर्स्ट वुमेन, वुमेन का नाम कौन है? तो नासा के ये अगर मालूम कर लिया इसमें, पर ये क्या है? नासा NASA recently announced the name of 4 astronauts who will be the first to go around the moon in over 50 years since the end of the Apollo missions. ओके, अपोलो मिशन हो गए 50 साल हो गए, ये लोग 4 है।
Okay. This person, Yes. this person, this person. This woman. Yes. Okay. Let me- एक so क्वेश्चन क्या था इसमें? What was the question? Recently, NASA has announced the names of the 4 astronauts who will be the first to go to moon in over 50 years since the end of Apollo missions. In relation to who will be the first woman to go around the moon, 4 ऑप्शन दिया: क्रिस्टीना हैमॉक कोच, विक्टर ग्लोवर, जेरेमी हैंसन, कमांडर रीड, वाइजमैन। इसका अगर आप Yes. सोल्यूशन देखें तो ये लोग 4 जने हैं। Yes. तो क्या है, 4 एस्ट्रोनॉट्स कौन है? द फर्स्ट वुमेन क्रिस्टीना हैमॉक कोच, कौन? द फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट विक्टर ग्लोवर, थर्ड जेरेमी हैंसन, फोर्थ And कमांडर रीड Commander Reed. वाइजमैन। Wiseman. तो ये क्या है, एस्ट्रोनॉट जो हैमॉक कोच है ज्वाइन नासा कब ज्वाइन करे थे? 2013. 2012. 2013 में served as flight engineer on International Space Station. and profession से क्या है? She is an engineer Engineer. and conducted six spacewalks including the first 3 all-women spacewalks. She will be a mission specialist on the Artemis 2 mission that will take her around the mission. ये mission का नाम क्या है? Artemis. 2 mission. ये Second पूछ सकता mission. हूँ। 2 mission. You can ask you what was the mission. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सो कौन सा आंसर होता? First one. तो व्हाट इज आंसर? Christina Hammock कोच। तो ये Koch. क्वेश्चन से, फ्रॉम दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, उसका जीके निकालना है। उसमें कौन से मिशन से गए? यू मैच क्रिस्टीना हैमॉक कोच वाज इन न्यूज फॉर अराउंड द मून मिशन। उसके बारे में खुद ही पूछ सकता हूँ, व्हेन शी जॉइंड द नासा, या व्हाट इज द प्रोफेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड हु इज द फर्स्ट ब्लैक पर्सन? Global. The first black astronaut will be Victor Glover. Victor Glover. और तो फर्स्ट Yes. जब भी आ जाता, there will be a chance that it might ask question. Next question पढ़िए। The Paris Club decided to provide financial assurance to the International Monetary Fund on Sri Lanka's debt. In this context, consider the following statement in the relation to Paris Club. देखिए इसमें आपको याद करना है, कॉमर्स के हैं आप लोग। हाउ मेनी ऑफ योर कॉमर्स? हु इज अ क्रेडिटर? क्रेडिटर कौन है? हु गिव्स मनी? हु yes गिव्स sir. मनी? और हु गिव्स डेट? जो कर्जा देता उसको बोलते जो हैं क्रेडिटर। हु इज अ डेटर? देने वाला कर्जा। डेटा कौन? बैंक। Main. हु टेक्स डेट? हु टेक्स पर्सन। डेट? अब आपको, यू माइट हैव heard about the Bretton Woods twins. Bretton Woods twins किसको बोलते हैं? World Bank and वर्ल्ड बैंक एंड IMF। IMF. दोनों. वर्ल्ड बैंक एंड IMF। वर्ल्ड बैंक क्या है? डेवलपमेंट के लिए देते। वर्ल्ड बैंक गिव्स ऑन Okay. डेवलपमेंट एंड IMF गिव्स ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस जब रहता। तो जी. कौन सी कंट्री है? रिसेंटली वी हैव सीन श्रीलंका बीइंग इन डेट। श्रीलंका वेंट टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अ क्रेडिटर ऑर्गेनाइजेशन। जो कर्जा होगा या जो फॉरेक्स का जो प्रॉब्लम हो जाती, उसके लिए पैसा देता, फॉरेन एक्सचेंज। जी. अब IMF को कौन देते? अगर आप किसी को देना है तो आपके पास तो किसी के पास रहना ना। हाँ. तो IMF को कौन देते? पेरिस क्लब देते। ठीक है, क्रेडिटर ऑफ क्रेडिटर्स बोल सकते हैं आप।
तो आपके बारे में पेरिस क्लब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहले पेरिस क्लब के बारे में पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये, पढ़िए। पेरिस क्लब क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ऑफिशियल क्रेडिटर्स। क्या है पेरिस क्लब? इनफॉर्मल Informal ग्रुप group of official creditors. इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ ऑफिशियल क्रेडिटर्स। रोल क्या है? टू फाइंड कोऑर्डिनेटेड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू द पेमेंट डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड बाय डेटर कंट्रीज। जो कर्जेदार हैं उन लोगों की मदद करने के लिए। कितने मेंबर्स का ग्रुप है ये? 22 members. 22 मेंबर्स का ग्रुप है। और इसके जो ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील आर मेंबर्स ऑफ दिस क्लब। चाइना इज नॉट ए मेंबर। चाइना इज नॉट ए मेंबर। नॉट अ मेंबर। Not पेरिस क्लब माने यूरोप के जो पेरिस क्लब जो यूरोप है, यूरोप के अमीरा। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ पेरिस क्लब डेट्स बैक टू कब स्टार्ट हुआ था ये? 1956 में। जो पहली कंट्री जिसको मदद करी है पेरिस क्लब वाज अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वाज इन न्यूज। व्हाई? थोड़े दिन पहले अर्जेंटीना वाज इन न्यूज बिकॉज़ मेसी won the World Cup. सॉकर वर्ल्ड कप। जो दोहा Yes. कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, हु वन द वर्ल्ड कप? मेसी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वन द वर्ल्ड। सो पेरिस क्लब में क्वेश्चन आ सकता है आपको, सबसे पहली कंट्री कौन थी जो पेरिस क्लब से मदद ली? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना टू मेक इट पब्लिक क्रेडिटर्स इन पेरिस। उसमें क्या है? पेरिस क्लब क्या है? अभी तक 478 एग्रीमेंट थी, तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना याद रखिए 1956 से ये काम हो रहा। क्लियर है पॉइंट? और क्या है मेजर ऑब्जेक्टिव? क्या है? टू फाइंड सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन टू रीपे देयर बायलैटरल लोन्स। ठीक है। और क्या, अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, आप और कॉफी क्लब बोल के यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट। कॉफी क्लब क्या है? एक पेरिस क्लब देखे, एक कॉफी क्लब है। तो अब क्वेश्चन पे आओ। पेरिस क्लब के बारे में ऑप्शन ए, पेरिस क्लब इज ए 30 मेंबर ग्रुप ऑफ ऑफिशियल क्रेडिटर्स। करेक्ट है? wrong है. 22 क्या है? members. 22 मेंबर। 22 members. जी. तो जो भी ऑप्शन में ए है वो कट कर दो। First, second, fourth. आपको देना पड़े, Only B. आंसर मिल गया। जी. वेरी पढ़ लो आप ऑप्शन। Major objective of this club is to find out the sustainable debt relief solution for countries that are unable to repay their debt. Correct है? Yes, sir. Yes. Australia, China, Brazil. Australia and Brazil are China. members. China is Are not the a only member. members. Not member. ठीक है। Yes, तो sir. वैसे जैसा एक क्वेश्चन आता, क्वेश्चन से अपन जी के मालूम कर दें। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. Yes. Let us go to the next question. Fourth. North Atlantic Treaty Organization (NATO) is a major military alliance which aims to counter the military influence of Russia. Which among the following statement is are correct in relation to NATO? तो नाटो क्या है? North Atlantic Treaty Organization. Organization. इट इज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के बारे में 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है, वो करेक्ट है नहीं है, एक बार देखना है। ठीक है। So let us start with this thing. नाटो के बारे में पढ़ लो। नाटो कब बना? 1949. कौन से ट्रीटी से बना? Washington Treaty. Washington. कितने कंट्रीज है? 31. 31. कौन से From North, एरिया के? from North America North and America Europe and Europe. क्या गोल है? is to Safeguard safeguard the not allow. allies' freedom and security by political and military means. पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। इसमें क्या रहता बोले तो, आप इसमें अगर एक कंट्री पे अटैक हुआ समझो, इसका मतलब है ऐसा समझते कि पूरे नाटो पे अटैक हुआ बोले।
ठीक है, पूरे नाटो पे अटैक हो गई। An attack against one ally is attack against all। अपने अपन भी ग्रुप बना के रखते थे स्कूल में, एक पे अटैक होता पूरे ग्रुप जाता। Yes. ग्रुप था नहीं था अपना स्कूल में, Yes. एक पे अटैक हुआ तो पूरा ग्रुप पूरे जमा हुआ जाते। था शाम में स्कूल के पास, तो पार्क के पास, Okay. कभी कभी रोड पे। अगर सामने से कोई अटैक करा तो पूरे जो भी मेंबर्स है पूरे प्रोटेक्ट करने सामने आ जाते हैं। यस, Okay. वन अटैक इज एन अटैक ऑन ऑल। तो ट्रीटी एंश्योर्स अमंग एलीज सिक्योरिटी के लिए है ये। और क्या, इन एडिशन टू ट्रेडिशनल रोल इन नाटो लीड्स यूएन मैंडेटेड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यूएन के लिए है। अब आपको याद क्या रखना है, फिनलैंड सबसे न्यूएस्ट मेंबर है। Okay. फिनलैंड इज द न्यूएस्ट मेंबर, तो 31st कंट्री बनी। Yes, sir. स्वीडन इज नॉट ए मेंबर, याद रखो, स्वीडन इज नॉट ए मेंबर। Member. ये क्या है, कोल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था ये, अमेरिका के साइड का था ये नाटो, ये Okay. रशिया के साइड का वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पोलैंड का। और आपको और इसके बारे में मालूम करना है तो वार्सा ट्रीटी के बारे में मालूम करिए। इसका इसका ऑपोजिट रशिया सपोर्टेड क्या था, वार्सा ट्रीटी, पोलैंड। ठीक है, तो क्लियर है पॉइंट ये। Okay, sir. लेट अस कम टू द क्वेश्चन। पहला रीड करिए क्वेश्चन। NATO is a NATO security. पढ़िए। NATO is a security alliance of 30 countries from North America, Asia, and Europe. 31. Wow. एशिया नहीं है, only North America and Europe है। Yes. It was formed in 1991 with Wrong. the No, signing of the 1949. Washington 49. NATO aims to guarantee the freedom and security of its members through military means. Yes. Yes. Sweden and Finland were the recently joined member. Sweden नहीं है. Wrong. करेक्ट आंसर क्या है, ओनली सी। ठीक है, Yes. नाटो याद रखो, फुल फॉर्म भूल लेता कभी नाटो का। सिंपल आंसर विल बी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, US President Joe Biden visited Belfast to mark the 25th anniversary of the Good Friday Agreement. This agreement ended 30 years of violence in तो क्या है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट, Joe Joe Biden. Biden. जो बाइडेन। किधर गए नो, Joe Biden. Belfast. बेलफास्ट। बेलफास्ट किधर है, नॉर्दर्न आइलैंड का कैपिटल है ये बेलफास्ट। Yes. ठीक है, इस एग्रीमेंट एक 30 इयर्स के वायलेंस के बाद खत्म बना, ये क्या बोलते हैं एग्रीमेंट। तो आपको इसके गुड फ्राइडे के बारे में मालूम कर लेना, गुड फ्राइडे क्या था, क्यों हुआ था। ठीक है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट 25th एनिवर्सरी ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। बेलफास्ट में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, Good Friday Agreement. गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था, 10th April. अप्रैल 10, 1998 में हुआ था। ठीक है, कई को हुआ था, किसके बीच में हुआ था, Northern of Ireland. नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटेन एंड Britain. आयरलैंड। ठीक है, अभी क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, एंड टू डेकेड्स ऑफ वायलेंस इन नॉर्दर्न आयरलैंड among those who wish to remain in the United Kingdom and those who wanted to join Ireland। जो जैसा अपना पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जी। तो इंडिया पाकिस्तान जैसा हुआ था वैसे ही उधर भी कितने, इधर तो अपन 3 साल में खत्म हो गए। 1947 में पार्टीशन हुआ, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, इधर आने जी। वाले उधर चले गए, उधर आने वाले इधर चले गए, सिटीजनशिप में डिस्कस करे थे अपन। जी। लेकिन उधर क्या था,
यूके में रहने वाले और नॉर्दर्न में रहने वाले बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे, ना उधर जा सक रहे थे ना इधर जा सक रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए 30 साल के बाद गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, विच एंडेड 30 years of violence known as the troubles। क्या बोलते? The known trouble. as the troubles Troubles. has been hailed as a model। आज भी क्या है, 30 साल के बाद में वो लोग कॉम्प्रोमाइज करे थे, तो एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीस एग्रीमेंट है, ठीक है। Okay. अब इसमें और कुछ मालूम करना है। इट फेस्ट ए जॉइंट नोबेल प्राइज फॉर डेविड ट्रिम्बल एंड जॉन ह्यूम टू अपोजिंग पार्टीज इन नॉर्दर्न आयरलैंड। उधर के जो लीडर्स थे 30 साल के बाद लड़ाई खत्म करे बोलते वो लोग क्या दिए, एक नोबेल प्राइज Nobel दिए थे। Prize. किसको मिला था? डेविड टिम्बल, David Trevor, John Hume. जॉन ह्यूम को मिला, ठीक है। और ऐसी कुछ न्यूज मालूम करना है आपको, कोरियन क्राइसिस के बारे में मालूम करिए। कोरियन पेनिनसुला, नॉर्थ कोरियन पेनिनसुला और साउथ कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। तो बेलफास्ट किधर है? Northern Ireland. तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट किस वजह से करे थे? बेलफास्ट में वायलेंस को रोकने के लिए। और इशू क्या था? जी, इशू क्या था? व्हाट इज द इशू? इशू क्या था? एग्रीमेंट बिटवीन फैक्शंस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड। व्हाट इज द इशू? हेलो? एंड ऑफ डिकेड वायलेंस। वो एंड ऑफ डेकेड वायलेंस है, बट एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में। गवर्नमेंट्स ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड, ठीक है। जो लोग उधर जाना चाह रहे उधर चले गए, जो यूके में रहना चाह रहे यूके में रह गए, ठीक है। इसको बोलते गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। और ये जो प्रॉब्लम्स थे उसको क्या बोलते थे? द ट्रबल्स भी बोलते, ठीक है। तो द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ब्रिटेन गवर्नमेंट। नॉर्दर्न आयरलैंड। अब क्वेश्चन के हिसाब से 5-2, ठीक है। Yes, नेक्स्ट sir. 6 क्वेश्चन। Rupur nuclear power plant, which was recently seen in news, is located in Bangladesh. लोकेटेड इन बांग्लादेश। क्या है ये? बहुत इंटरेस्टिंग है न्यूज। इंडिया रशिया दोनों मिलके बांग्लादेश में रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे। क्या कर रहे लोग? रूपुर पावर प्लांट कौन बना रहे? इंडिया और बांग्लादेश, सॉरी इंडिया और रशिया। इंडिया और रशिया मिलके Yes. बांग्लादेश में बना रूपुर पावर प्लांट बना रहे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे, ठीक है। अपने क्या जरूरत पड़ी है बनाने की? अब बांग्लादेश को जाके 2014 में एक स्ट्रैटेजिक विजन डॉक्यूमेंट साइन करे थे कि हम आपको मदद करेंगे बोल के, ठीक है। और क्या है? इंडिया साइंड ए सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील along with 2 or more agreements with बांग्लादेश। 2014 में मदद करेंगे बोल के बताए थे, स्ट्रैटेजिक विजन डॉक्यूमेंट। 2017 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन दी। जैसा इंडिया, एक आप क्वेश्चन आ सकता है आपको, 1, 2, 3 एग्रीमेंट क्या था बोलते? इंडिया यूएसए का सिविल न्यूक्लियर डील को बोलते हैं 1, 2, 3 डील। इंडिया यूएसए न्यूक्लियर डील, इंडिया यूएसए न्यूक्लियर डील, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? 1, 2, 3 एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। 1, 2, 3 एग्रीमेंट। ये अपन यूएसए से करे थे। अब सिविल न्यूक्लियर डील कोऑपरेशन डील बांग्लादेश से कब साइन करे? 2017, अप्रैल 2017 में। तो इसके तहत अपन क्या बना रहे? रूपुर रशिया के साथ मिलके
रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है। और क्या है, एटॉमिक फिशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। एटॉमिक फिशन, न्यूक्लियर की दो टेक्नोलॉजी रहती है, एक तो फिशन रहता है, एक फ्यूजन रहता है। वन इज फिशन, Fission and fusion. ठीक है, दिस इज द फिशन टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या है ये? Rupur nuclear power plant, which was recently seen in news, Bangladesh. लोकेटेड इन बांग्लादेश। Bangladesh. इसके पिछली स्टोरी पहले अपन बैकग्राउंड स्टोरी पूरा देख लिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Zero draft of the pandemic treaty, which was recently in the news, was released by रिलीज बाय ऑप्शन 1, WHO. 2, UNIP, WEF, UNDP. WEF, UNDP। कौन रिलीज करे ये? लेट अस गो टू द सॉल्यूशन। पढ़ी क्या है? The World Health Organization (WHO) recently published a zero draft of the pandemic treaty. The zero draft of pandemic treaty was established based on recognizing the catastrophic failure of the international community is showing solidarity and equity response to the novel coronavirus disease COVID-19 pandemic. तो क्या है, ये पूरा पूरा डेटा है, वो आप पढ़ ले सकते हो। तो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ, ये क्या है जो ड्राफ्ट है ना, किधर प्रेजेंट करने वाले हैं? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 में होने वाली है, नेक्स्ट ईयर। अच्छा। जीरो ड्राफ्ट प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। The world community has spectacularly failed in saving lives during COVID-19. Okay. करोड़ों में मरे लोग। Pandemic. तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ आया तो मदद कर सकना बोल के ड्राफ्ट बना, ठीक है। सो द जीरो ड्राफ्ट ऑफ पैंडेमिक ट्रीटी रिलीज बाय World Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट 8, Consider the following statement in relation to New START Treaty, which was recently in the news. स्टार्ट ट्रीटी क्या है? पहले आंसर पे जाएंगे फिर ऑप्शंस पे, तो पढ़िए। President Vladimir Putin recently announced in an address to his nation that Russia is suspending its participation in the New START Treaty. Russia. रशिया इज सस्पेंडिंग इट्स पार्टिसिपेशन इन New START Treaty. न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब ये है क्या न्यू स्टार्ट ट्रीटी? पहले तो स्टार्ट ट्रीटी के बारे में पढ़िए। The name START comes from the original Strategic Arms Reduction Treaty, known as START 1, which was signed between the US and the erstwhile Russia in 1991 and came into force in 1994. तो स्टार्ट ट्रीटी कब साइन करे थे? 1991 में। 1991 में करे थे। फोर्स में कब आई? स्टार्ट हुई 1994 में। 1994 में, ठीक है। व्हाट इज स्टार्ट? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ये क्या था? स्टार्ट यूएस 1 और रशिया के बीच में है वो। 91 में साइन करे, इफेक्ट में 94 से। और क्या है? which kept the number of nuclear warhead and intercontinental ballistic missiles that each side could deploy at 6,000 and 1,600 respectively lapsed in 2009. 2009। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ? 18 में नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हो गया? 1945। 1945 में खत्म हो गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया?
कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। हाँ, कोल्ड वॉर, ओके। कोल्ड वॉर 1950 से लेके 1991 तक चला। यूएसएसआर का कोलैप्स तक। यूएसएसआर कब कोलैप्स हो गया? 91 में कोलैप्स हो 1991 गया। जी। लेकिन इसके बीच में क्या हो गया, इन लोगों ने क्या करे, एक कोल्ड वॉर में आर्म्स रेस स्टार्ट करे लोग, हथियार बनाने का आर्म्स रेस, अच्छा, आर्म्स रेस एंड स्पेस रेस। और आर्म्स रेस ऐसे वैसे नहीं, न्यूक्लियर बनाने के रेस स्टार्ट कर दिए, आर्म्स रेस एंड स्पेस रेस। The USSR sent his first cosmonaut into space. Who was the first person to walk in space? स्पेस में जाने वाला पहला आदमी कौन? रितेश शर्मा। Who was the first person to walk in space? यूरी गगरिन, याद है कुछ? यूरी गगरिन, यूएसएसआर की तरफ से। अब ना यूएसएसआर वाले क्या करे, स्पेस में भिजा दी। यूएसए वाले क्या बोले, आप स्पेस में भिजाते, मैं चांद पे भिजाता हूँ। Who was the first person to walk on moon? यूरी गगरिन। Walk on moon. हम्म, Yuri Gagarin was the first person to walk on in space. मून पे, चांद पे कौन पैदल चले? आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये तो स्पेस रेस हो गया। यस। अब वो उसमें क्या था, इट्स लाइक व्हाट यू कैन से, इसी में क्या था, जो आर्म्स रेस स्टार्ट कर रहे थे लोग, उसमें क्या है, न्यूक्लियर का स्टार्ट कर रहे थे। तो इन लोग एक या दो भी इस्तेमाल करते, पूरी दुनिया खत्म करने के लिए बस्ती हो। तो उन लोगों को बाद में 40 साल के बाद समझ में आया, हम तो पागलपने में इतने जमा कर लेते। तो चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा कम करो, ठीक है। और जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स माने न्यूक्लियर वेपन्स, जहाँ न्यूक्लियर रखते, वो हर हर यूएसए और रशिया कितना रख सकते? 6000। बहुत ज्यादा थे, लेकिन दोनों साइड कितना रख सकते? मैक्सिमम 6000। और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल क्या है, व्हाट इज मिसाइल? मिसाइल में टोपी रहती, ऊपर कैसे क्या बोलते? टोपी। ये न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें रख के लॉन्च करते। इधर अमेरिका है, इधर रशिया है। जो मिसाइल्स अमेरिका से रशिया को आ सकते हैं, जो और जो मिसाइल रशिया से अमेरिका को जा सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर सकते, आईसीबीएम्स बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा? नोन एज आईसीबीएम्स। तो कितना रख सकते दोनों साइड स्टार्ट के ट्रीटी के हिसाब से? 6000 वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड 6000 रख सकते। जी। मिसाइल्स कितने रख सकते? 1600 से। अभी जो स्टार्ट ट्रीटी हुई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, कब खत्म हो गई? 2009 में। 91 में साइन करे थे, 2001 में खत्म हो गई, 2009 में खत्म कर दिया इसको। फिर उसके बाद में ये सक्सेसफुल ट्रीटी थी, तो इसका सक्सेस देके क्या करे, और एक ट्रीटी लाए। क्या नाम है? शॉर्ट ट्रीटी बोलते, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट खत्म हुआ, स्टार्ट के बाद क्या स्टार्ट हुआ? शॉर्ट। शॉर्ट स्टार्ट हुआ। शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट की ट्रीटी क्या बोलते? ट्रीटी ऑफ मॉस्को ही बोलते। और एंड देन बाय द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, पहले स्टार्ट आया, फिर शॉर्ट आया, फिर शॉर्ट के बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी आया। अब क्वेश्चन आपने पूछा न्यू स्टार्ट ट्रीटी में, अभी पढ़िए क्या है। द न्यू स्टार्ट ऑफिशियली ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड
Russian Federation. Measure of further reduction and limitation of strategic offensive arms. कब into force में आई थी ये? February 5, 2011. 2011 को आई थी. ठीक Yes. है. Limits on intercontinental range nuclear weapons. ठीक है. 2011 में इफेक्ट में और चल रही थी ये. It was continuing. अब क्वेश्चन पे आओ. ऑप्शन ए क्या है? Start one was signed between USA and erstwhile Russia in 1991 and came into force 1994, right? Came into force 1994. Uh, Okay, It focuses on the measure for the reduction and limitation of strategic offensive arm. ये भी right. This treaty restricts the use of conventional bombs along with the nuclear arsenal. ये क्या है? कन्वेंशनल बॉम्ब्स नहीं है, ये सिर्फ क्या है? न्यूक्लियर के लिए है. Yes, sir. ये न्यूक्लियर के लिए. कन्वेंशन से रॉन्ग दे दिया, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Option B is correct. ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट. तो जिसमें ऑप्शन सी रॉन्ग है अपना, तो सी की तरह वो कैंसिल कर दो. 4, 3. 3. इसमें बी है. ऑप्शन ए और बी दोनों भी करेक्ट है. Yes, sir. सो ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. 8 में की के हिसाब से 8 वाला 1. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पे आ जाओ. प्लीज रीड 9 क्वेश्चन. Recently, International Criminal Court issued an arrest warrant against Vladimir Putin. In this context, consider the following statement. रिसेंटली आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है. इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन. अब आईसीसी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. लेट अस सी अबाउट आईसीसी एंड देन कम टू द क्वेश्चन. ओके, क्या है बोलिए? आईसीसी क्या है? कब एस्टैब्लिश? मार्च. व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कब इशू हुआ वारंट? 17 March 2023. मार्च 17, 2023. ठीक है. It was the alleged war crime of war crime. It is a क्या है उसका? What is the issue? क्या है? कौन से बेसिस War पे crime. वारंट इशू हुआ? War crime. war crime पे. ठीक है. Unlawfully deporting and transferring children from occupied areas of Ukraine to the Federation. यूक्रेन से रशिया में लेके जा रहे हो. ठीक है. Yes. अब आईसीसी द वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. आईसीसी क्या है? दुनिया का सबसे पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है. ओके. Yes, sir. द आईसीसी हेडक्वार्टर किधर है आईसीसी का? हेग. Hugh, Netherlands. हेग Netherlands. नेदरलैंड. HAGUE हेग नेदरलैंड. कब एस्टैब्लिश हेग. हुआ? 1998. कौन से स्टैट्यूट से एस्टैब्लिश हुआ? Rome Statute. रोम स्टैट्यूट से एस्टैब्लिश हुआ. अब इसमें कितने मेंबर्स है? 123. इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान एंड जर्मनी. Okay. और however USA has kept it distant. USA को अगर कमेंट करो बोल के बोले क्या है अरेस्ट वारंट इशू, आपका क्या कहना है? व्हाट इज योर ओपिनियन? USA said ICC should not exercise jurisdiction over the citizens of countries that are not party to it. माने रशिया is not a party of ICC. रशिया ICC का मेंबर नहीं है. नहीं. Yes, याद sir. रखिए. Similarly, India and China have also abstained from membership. इंडिया और चाइना भी क्या है? कि मेंबरशिप से abstained. माने नहीं होना बोल दिए. जरूरत ही नहीं है मेंबरशिप के लिए. हमारे पास हमारा सुप्रीम कोर्ट है. देख लेता हूँ. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. और क्या है? रशिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीसी. याद रखिए. और इसके काम क्या करता आईसीसी? इन्वेस्टिगेट और वारंट्स है
तो ग्रेवेस्ट क्राइम्स के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए इन्वेस्टिगेशन होता एंड सजा देता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. If the Putin travels to state party ICC, then the country must not arrest him according to the obligations under international law. तो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन पढ़िए। पहला ऑप्शन, ICC is one of the six main organ of the United Nations. ओके करेक्ट है ये, वो तो क्रिमिनल कोर्ट का अटैच है ऑफिस। ओके नेक्स्ट, It is headquartered at the Hague, Netherlands. Right, करेक्ट है रॉन्ग है? right है. It See. was established under Rome Statute. ये भी right है. ओके, Statute. उसके बाद It is the first time that ICC has issued a arrest warrant against the head of the state of the permanent member of UN Security Council. so is it the first time of a permanent member of head of the council? क्या पहली बार हुआ ये? Is it the first time? First time, huh? Yes, it is the first time. Okay. ये क्या है? ICC is the one of the main six organs. It is not the one of the main six organs. ये statement wrong है. It is attached office है, but not the main है. ये wrong है. Okay. Attached office है, but it's not the main organ. So this is wrong. So this is A है, ये cancel, ये cancel, ये cancel. All the कौन सा ऑप्शन है? 2. time. Okay. 9 2. इतना याद रखो, रोम स्टैट्यूट कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स? हेग, नेदरलैंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। India's year-long G20 presidency commenced on 1st December 2022 and would continue consider the following statement. Would continue until 30 November 2023. In this context, consider the following statement. अब ये क्या है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इंडिया में G20 होने वाली है, ये चल रही, लास्ट ईयर स्टार्ट हुई, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का। उसके बारे में, उसमें दुनिया के क्या बोलते हैं मीटिंग्स होने वाले, उसमें से एक मीटिंग क्या है? यूथ 20 बोल के मीटिंग है। कौन सी मीटिंग है? यूथ 20 बोल के 20 कंट्रीज से यूथ आके मीटिंग कर रहे, साइडलाइंस ऑफ G20। तो अब ये जो Y20 बोलते हैं इसको, U20 Y20 कब स्टार्ट हुई है, कब हुई है G20 की मीटिंग? Guwahati, 6th and 8th February. 6th and 8th February. 8th February. It is one of the 2023. 8 Engagement group official under engagements group under G20 umbrella। ये G20 umbrella में 8 ऑफिशियल मीटिंग होने वाले हैं, उसमें से एक ऑफिशियल मीटिंग क्या है? यूथ 20 है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द वेरियस मीटिंग्स ऑफ द 5 Y20 अक्रॉस इंडिया। पूरे कितने होने वाले हैं U20 के मीटिंग? 5 होने वाले हैं। उसमें से पहली मीटिंग कब हुई? 6th and 8th February. 6 and 8 फरवरी की। 8th February. और क्या? ट्रेडिशनल फोरम, ओन पॉलिसी प्रपोजल। और उसमें क्या है? 5 थीम्स है। उसमें क्या है? 5 थीम्स। पहली थीम क्या है? Climate of change work. and disaster reduction. Future of work, climate change and disaster reduction, peace building and reconciliation, youth in democracy and health, well-being and sports। ठीक है, ये 5 पैरामीटर्स है, याद रखना, याद रख सके तो याद रख लीजिए। तो shall we go to the question again? Yes, sir. पढ़िए क्या है क्वेश्चन। India's first long G20 presidency commenced on 1st December 2022 and would continue
until 30 November 2023. In this context, consider the following statements. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? India is hosting the Youth 20 Summit for the first time on the sideline of the G20 Summit. तो करेक्ट है, रॉन्ग है? करेक्ट है. Right. बी. Youth 20 is one of the 8 official engagement group under the G20 umbrella. ये भी सही है. यस, करेक्ट है. Youth 20 Summit was held in Bangalore. Wrong. गुवाहाटी में. गुवाहाटी में हुई थी. It was in गुवाहाटी. पहली मीटिंग क्या है? गुवाहाटी में हुई. तो जहाँ सी रॉन्ग है अपना, जो ऑप्शन है सी है उसको कैंसिल कर दो. अब ए बी सी क्या बचा आंसर? 1. 10 1. The correct answer is A. A. 1. ठीक है. 1. 10 1. Yes, Clear a point? yes, sir. Next. 11 पढ़िए. India, France, and UAE recently agreed to have trilateral cooperation in various fields. In this context, consider the following statement. ठीक है. इंडिया, फ्रांस और यूएई क्या है? ट्राइलेटरल France कोऑपरेशन और करने वाले हैं. ठीक है. Trilateral, yes, sir. अब उसके कंटेक्स्ट में जरा ये क्वेश्चन ना पढ़ो, ऑप्शन पढ़ के बोलो करेक्ट है नहीं. तो पहले डेटा देख लेंगे फिर आंसर करेंगे. प्लीज रीड. Recently, India, France, and the UAE have agreed to establish a formal trilateral cooperation initiative with the aim to expanding cooperation in various fields in the mutual interest. The various fields including energy, defense, and economy. ओके. ठीक है. अब करेंटली इंडिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20. अभी पढ़े थे. UAE is hosting UNFCC. UAE is a part of trilateral meeting. So UAE will be hosting the UNFCCC COP28. COP क्या है? Conference of Parties. 2023 में. France is a member of G20. UAE is not a member of G20. UAE is not member of G20. अच्छा. UAE is not a member of G20. Okay. G20. By this come to the question. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? UAE and France are member of G20. No, wrong. UAE is not a member of G20, but France is a member of G20. So option A becomes Right. wrong. So option A में जो भी है, France. option A नहीं हो सकता. Okay. Next. France is going to host UNFCCC COP28 in 2023. So फ्रांस है या UAE है? UAE है. UAE. तो ऑप्शन both are wrong. तो क्या पूछा उन्होंने? करेक्ट Yes. पूछा. तो neither A nor Yes. B are correct. Nor तो B. अपना आंसर क्या है? Neither A or nor B. ना ही A करेक्ट है ना ही B करेक्ट है. तो अपना ऑप्शन क्या है? 4. 11th वाला 4. 4. Clear a point? Yes, sir. Next. 12th question. Recently, Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, jointly inaugurated the India-Bangladesh Friendship. Please read. Recently, Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, jointly inaugurated the India-Bangladesh Friendship Pipeline. In this context, consider the following statement. तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले लेट अस गो टू द डेटा. Yes. सो पढ़िए. Prime Minister of India Narendra Modi and Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina jointly inaugurated the India-Bangladesh Friendship Pipeline.
The foundation stone for the construction of this pipeline was laid by both prime ministers in September 2018. तो क्या है ये फाउंडेशन स्टोन? IBFP. What is IBFP? India Bangladesh Friendship Pipeline. इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इससे पहले देखे थे वो क्या था इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में? रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए बांग्लादेश में। इंडिया बांग्लादेश yes, सिविल sir. न्यूक्लियर डील से इंडिया Yes, sir. या रशिया के साथ मिलकर बांग्लादेश में न्यूक्लियर प्लांट बना रहा। क्या नाम है? रूपुर पावर प्लांट। Yes, तो एक sir. और एक है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक है। फाउंडेशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ Yes, sir. पाइपलाइन वाज लेड बिटवीन सितंबर 2018 में September 2018. by both PM of India and बांग्लादेश। इसके बाद This is the second cross-border energy pipeline between India and its neighbors. so this is the Cross-border. second cross-border energy pipeline between India and its neighbors. So Yes. IBF is the first cross-border IBF. between India and Bangladesh. Okay. बांग्लादेश के साथ पहला, और इससे पहले भी एक और Okay, कंट्री के साथ क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन था। ठीक है। नेक्स्ट इंडिया का ना? यस। इसकी कितनी कैपेसिटी है इसकी पाइपलाइन की? Transport 1 million million metric ton per per annum annum of of high high speed. speed diesel to बांग्लादेश। डीजल सप्लाई, ये क्वेश्चन ये जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन में क्या सप्लाई कर रहे हैं? पेट्रोल पर सप्लाई कर रहे हैं या क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहे हैं या पेट्रोल कर रहे हैं या डीजल कर रहे हैं या केरोसिन कर रहे हैं? क्या सप्लाई कर रहे हैं अपन? Diesel. डीजल डीजल। तो बांग्लादेश। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये? 377 crore. 377 करोड़। बांग्लादेश पोर्शन ऑफ द पाइपलाइन 285 करोड़ बांग्लादेश पोर्शन पे ही लग गए। ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर पॉइंट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Options पढ़ना है? मैं Yes. शुरू से पढ़ना। ऑप्शन Okay. This is the second cross-border energy pipeline between India and its neighbor. Right. राइट स्टेटमेंट है। नेबर अगर बांग्लादेश के साथ बोलता तो रॉन्ग हो जाता, बट नेबर्स बताया तो सेकंड करेक्ट है। इसके बाद Yes, sir. The cost of construction the pipeline equally divided between India and Bangladesh. No. पूरा कॉस्ट क्या India है? का 377. पूरा कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट इज India का 377 crore है। द बिल्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट इज पूरा 377 है, पूरा 377 है। बांग्लादेश में जो बन रहा 285। Okay. तो इन्हें क्या बोला? आधा आधा बांट ले रहे बोल के बताया। Yes, sir. आधा आधा बांट ले रहे बोल के बताया। कॉस्ट ऑफ पाइपलाइन इज इक्वली Wrong. डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Wrong. इसका Wrong. मतलब क्या है? ओनली B जहाँ भी है कट। A सही। ये कैंसिल हो जाता, ये कैंसिल हो जाता Yes, sir. और ये भी कैंसिल हो जाता। ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है। Yes, sir. ओके, चलिए। दिस वाज योर 12th क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 13th, प्लीज रीड। The Raisina Dialogue in India Premier Conference on Geopolitical and Geoeconomic committed to addressing the most challenging issue facing the global community. The conference is hosted by क्या है? रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग कौन होस्ट करते? ये तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट रायसीना डायलॉग इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द इट केम आफ्टर दिस मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पिक्चर। सो क्या है रायसीना डायलॉग?
Raisina Dialogue is India's premier conference on geopolitical and geo-economical committed to addressing the most challenging issue facing the global community. It takes its name from the Raisina Hill, the seat of the Indian government. First Raisina Dialogue held in 2016. So ये word Raisina कहाँ से Dialogue लिया? is India's Raisina Hill. premier conference on geopolitics. माने गेट टुगेदर है ये, Yes. क्या है? Okay. गेट टुगेदर, आके मिलके बात करेंगे. जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, पूरे लोगों को बुलाते, ओपन इन्विटेशन रहता. ठीक है. इट टेक्स ऑन राइसिना हिल्स, माने जहाँ सीट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट जी उधर होता है. जी. फर्स्ट राइसिना डायलॉग कब हुआ था? 2016. 2016 में हुआ था. Yes sir. 2016 में हुआ. एवरी ईयर लीडर्स इन पॉलिटिक्स, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आके न्यू दिल्ली में चाय पीते, बिस्किट खाते. बिल्कुल. ठीक है. हाँ. डायलॉग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन मल्टी स्टेक होल्डर क्रॉस सेक्शनल डिस्कशन, माने जो बोले वो बात करते. देयर इज नो लिमिट. और क्या, प्राइवेट सेक्टर वाले भी आते, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, जिसको बोले, जो बोले वो. ठीक है. Okay. Post कौन? द कॉन्फ्रेंस इज होस्टेड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. ये इंपॉर्टेंट है. होस्टेड बाय Observer Research Foundation in partnership with External Affairs Ministry. Who is the Minister, External Affairs Minister? Professor Professor Jaishankar. So coming to the question, राइसिना डायलॉग कौन होस्ट करते हैं, पूछा. ऑप्शन 1 क्या है? Observer Research Foundation in partnership with Ministry of External Affairs, Government of India. Right. Observer Research Foundation in partnership with Ministry of External Affairs. करेक्ट है, रॉन्ग है? Correct. करेक्ट है. नीति आयोग नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ. नीति आयोग तो होता ही नहीं. ठीक है. सो ऑप्शन इज 13(1), ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. ये क्या है? इट इज ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन किसका है? अंबानी ग्रुप का है. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इज ऑफ अंबानी ग्रुप, याद रखिए. क्लियर है पॉइंट? तो करेक्ट आंसर इज 1. राइसिना डायलॉग, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. क्लियर है पॉइंट ये? Yes sir. नेक्स्ट, प्लीज रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. 14. Recently, Indian government invoked Vienna Convention in London when pro-Khalistan supporters took down the Indian flag at the High Commission in London. Which among the following statement is correct in the relation to Vienna Convention on diplomatic relation? तो वियना कन्वेंशन के बारे में पूछ रहा हूँ. ये आप न्यूज में देखे तो ये खालिस्तान का चल रहा था कुछ मसला, तो यूके में क्या है, वो पूरा अपना इंडिया का फ्लैग नीचे उतार दिए थे, निकालने की कोशिश करे थे लोग. तो उसके रिलेशन में वियना कन्वेंशन रूल्स में बताता. वो वियना कन्वेंशन रूल्स क्या है बोल के पूछ रहा हूँ. ठीक है. लेट अस रीड अबाउट वियना कन्वेंशन. क्या है वियना कन्वेंशन, पढ़िए. Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 provides a complete framework for the establishment, maintenance, and termination of diplomatic relation on the basis of consent between independent sovereign states. तो मिल बैठ के बात कर लेके या रखना है या नहीं है, होल्ड पे रख देना है या पूरे कट कर देना है रिलेशन, इसके हिसाब से वियना कन्वेंशन के हिसाब से रहता. ठीक है. वियना कन्वेंशन कब डिप्लोमेटिक रिलेशन कब फोर्स में आया? 61 में बना, लेकिन फोर्स में कब आया? 1964 में. 1964 में.
लेकिन वियना कन्वेंशन में पूरे ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर मेंबर्ड एक्सेप्ट पलाऊ और साउथ सूडान, दोनों मेंबर्स नहीं है वियना कन्वेंशन। ठीक है, पलाऊ और साउथ सूडान मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, बट दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ वियना कन्वेंशन। ठीक है, Okay. तो एज पर वियना कन्वेंशन, हाई कमीशन ऑफ एम्बेसी रेस्पॉन्सिबल टू द होस्ट द नेशन। सो क्लियर है पॉइंट? When diplomatic missions cannot employ their own security, ultimately the host nation is accountable for security. अपने पास भी G20 हो रहा, Yes, sir. तो अब जो पूरे लोग आ रहे बाहर से, उन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन, खुद का खुद देख लो बोलना या अपन करना? इंडिया अपन चलते अपन करना। खुद का खुद देख लो बोले तो क्या होता? What happens when we say अरे भाई आप लोग आ रहे, आपकी मर्जी से आ रहे, इतना खर्चा देख लो बोले तो क्या होता सिक्योरिटी का? It will go against Vienna Convention. Next questions for options for year. Vienna Convention on Diplomatic Relations came into force in 1945. Slow, भाई को भाग रहे। Okay. कब्जा नहीं है इधर। You are not reading for yourself, में reading for हाँ. everyone. Yes, sir. Sorry. कहीं जाना है क्या? Under this convention, no, बस sir. फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो। Vienna Convention on Diplomatic Relations came into force in 1945. करेक्ट है? No, कब आया force में? 1964. 1964 में साइन कब हुआ था? 1961 में साइन हुआ। 1961 में. फोर्स में आया 64 में। Yes, उसके sir. बाद ए इज रॉन्ग, जहाँ ये रॉन्ग है वहां कट कर दो। 2 और 4 कट हो गए। Yes. या तो ऑप्शन आपका 1 हो Yes. सकता है या 3 हो सकता है। 1 और 3 में Yes. 2 बी है, तो बी ऑटोमेटिकली करेक्ट होता। अब जी. देखना है अपने को सी करेक्ट है नहीं है, बी भी पढ़ लीजिए। C, B. बी पढ़ो। B. Under this convention, security of any high commission or embassy in the responsibility of the host nation. ऑफ द होस्ट नेशन। Right. ऑफ द होस्ट नेशन Yes, High माने Commission of Embassy. हैदराबाद में हर कंट्री का अपना अपना घर रहता। हर जी. कंट्री का अपना अपना घर रहता है फॉरेन कंट्री में। ठीक है, तो अपना हैदराबाद में किधर है एम्बेसी में? हैदराबाद में एम्बेसी किधर है यूएसए की? जो हैदराबाद में है नानक राम। किधर है? हेलो, हैदराबाद में यूएसए की एम्बेसी किधर है? कौन से एरिया में है? भाई मालूम है तो मालूम है, नहीं मालूम नहीं मालूम है, डोंट वेस्ट द टाइम। हैदराबाद में यूएसए की एम्बेसी किधर है? कौन से एरिया में है? कौन से पॉश एरिया में है? हाईटेक सिटी शायद नहीं मालूम, बोल रहे हैं हम कल। नॉट हाईटेक सिटी, बशीरबाग सर। बशीरबाग में है। इट इज इन बशीरबाग। बशीरबाग। तो Yes, वो sir. बशीरबाग के जो है उसकी सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन, जिम्मेदार कौन उसकी सिक्योरिटी का? नेशन इंडिया। इंडिया इज अ होस्ट नेशन। ठीक है, Yes. नेक्स्ट सी ऑप्शन। It has been ratified by all countries which are member of United Nations. क्या है? ऑल रॉन्ग है, ऑल Yes. एक्सेप्ट पलाऊ और Palau and South Sudan. South Sudan. पलाऊ एंड साउथ सूडान डिड नॉट रेटिफाई। Yes. तो और ये ऑप्शन सी रॉन्ग है, तो 1 कैंसर। करेक्ट आंसर इज 3। Only B. करेक्ट आंसर इज 3, ओनली बी। समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। 15 प्लीज रीड। Recently, Indian Army deployed its largest contingent of women
peacekeeper in the United Nations mission at Abai. In this context, consider the following statement. Abai. एक मिनट. Okay. Recently, Indian Army deployed its largest contingent of women peacekeepers in the United Nations mission at Abiy. Abai. In this context, consider the following statements. तो पहले आप इसके statements पढ़ लो. ठीक है. So please read. India deployed a platoon of women. India deployed a. Please read. India deployed a platoon of women peacekeeper in Abai on the border of Sudan and South Sudan as part of the Indian battalion in the United Nations Interim Security Force. तो यूनाइटेड नेशंस कब बना था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना. यूनाइटेड नेशंस जी. फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. तो यूनाइटेड नेशंस की भी एक आर्मी रहती. वो आर्मी में जितने मेंबर कंट्रीज है उन लोग अपनी आर्मी को भेजते होते यूनाइटेड नेशंस. वो नाम क्या है? पीस कीपिंग फोर्स बोलते. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स. ये जो फोर्स है, टीम क्या है? विल प्रोवाइड रिलीफ एंड असिस्टेंस टू वुमेन एंड चिल्ड्रन इन वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन अंडर द यूएन फ्लैग. मतलब साउथ सुडान में लड़ाई चल रही है. ठीक है. तो इंडिया वाले भी अपने लोगों को भेजे, वुमेन प्लाटून ऑफ वुमेन पीस कीपर्स. ठीक है. Okay. Women peacekeepers are highly regarded in peacekeeping missions throughout the world, and their ability to reach out and connect with women and children in local population, especially victims of sexual violence. And अभी कोई देखिए, whenever there is a war, the biggest victims are whom? Women. Women. हर जगह से women को ही झेलना पड़ता. Yes. Sexual crime, sexual violence. It's like the biggest losers are women. Society is a Yeah. loser, but in society who is the loser? सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? वुमेन का ही Women. नुकसान होता. ठीक है. So इंडिया वाले भेजे. So it was India's largest single unit of women in peacekeepers. ठीक है. और the first ever all women contingent in Liberia. 2007 के बाद ये सबसे बड़ा कंटिजेंट अपन भेजे. ठीक है. अब क्या है? ए फुल्ली फॉर्म्ड फीमेल पुलिस यूनिट विद सीआरपीएफ पर्सनल डिप्लॉयड इन अफ्रीकन नेशन इन 2007 में डिप्लॉय करे थे. So it was the first exclusive female team of police pressed into action in any UN peacekeeping force. तो कब भेजा थे पहली बार अपन? 2007. 2007 में भेजा थे. Let us read the options. Please read the options now. The women peacekeepers were deployed on the border of Turkey and Syria. Wrong. South and South Sudan, not South Yes, Sudan. Turkey and Syria नहीं है, South and South Sudan. Next. Yes. It is the first ever all women's contingents from India deployed a part of United Nations peacekeeping mission. So it is the first ever all women contingent from India deployed as part of United Yes. Nations. क्या ये पहली बार हुआ था? First ever Yes, बोल sir. रहा हूँ. All women contingent from India deployed as part of United Nations peacekeeping. क्या ये पहली बार हुआ था? पहली बार नहीं है, दूसरी बार हुआ. पहली बार कब हुआ था? 2007 में हुआ था. 2007 में हुआ था. ये तो दूसरी बार साउथ सुडान को भेजे अपन. Yeah. तो पहली बार नहीं हुआ. इट इज फर्स्ट एवर नहीं होता ये. इट इज द सेकंड. Second time. पहली बार 2007 में भेजे थे. sir. ठीक है. अब फिर 2023 में भेजे. ठीक है. सो ये भी रॉन्ग है. तो करेक्ट Neither आंसर है one nor two. neither A nor B. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir.
Okay. 15th question. 16th one. India has contributed $150,000 to United Nations Democracy Fund for 2022. In this contest, consider the following statement. Consider the following statements. Please read about the development fund. So पढ़िए क्या है? India has contributed $150,000 to United Nations Democracy Fund. 15 का आंसर 4. UNDF 15 का आंसर for neither 2022. A nor B. 15 का आंसर क्या है? Neither one nor B. माने दोनों भी रॉन्ग है ना? Yes, sir. दोनों भी रॉन्ग है. ए भी बी भी. तो ना ही ए होता ना ही रॉन्ग होता. फर्स्ट क्या है? टर्की एंड सीरिया ने साउथ एंड साउथ सुडान. Yes. ये 2000 पहली बार नहीं हो रहा. 2007 में भेजे थे, फिर 2023 में भेजे. जी. तो neither A nor B. करेक्ट आंसर पूछ रहा हूँ. तो दोनों भी करेक्ट नहीं होते. तो neither A nor B. फोर्थ. नेक्स्ट क्या कर रहे इधर? डेमोक्रेसी फंड कब बना था? 2022 में. 2022 में बना. इंडिया क्या है इसका? India is a founding partner of the UN Democracy Fund that has been established in 2005. तो क्या है? 2022 में कितना दिया इंडिया? 150,000 $150,000 US डॉलर्स इन 2022 में. बट ये बना कब था? 205. 2005 में बना था. Sorry. क्या करता काम इसका? फंड सपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स दैट स्ट्रेंथन वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी, प्रमोट ह्यूमन राइट्स, encourage participation in all groups in democratic processes. India plays a prominent role in UNDF. पैसे दिए तो परमानेंट रोल मिलता है मिलता. जहाँ पैसे दे रहे वहाँ अपना हक अब जताते पैसा भी. तो क्या है? लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर, एपेक्स गवर्निंग बॉडी में एडवाइजरी मेंबर है. ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड में. अभी तक इंडिया टिल डेट कितने पैसे दे दिया इधर यूएनडीएफ को? 32 million. $32 million Million. and Yes. remain third largest contributor. इंडिया क्या है? यूएनडीएफ को कौन सा कितना कंट्रीब्यूटर है? थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर. कितना पैसा? Contributor. $32 million. $32. ठीक है. सो पहला स्टेटमेंट पढ़ो. India is a founding partner of United Nations Democracy Fund. Right. ओके, नेक्स्ट. India is the largest contributor to this fund. No, third country. थर्ड लार्जेस्ट है. तो Yes. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. ए 16-1. ठीक है. Yes, sir. A is the answer. Next question, 17. We'll take the class till 4:30. Okay, sir. 17. India and Australia have entered into an economic cooperation and trade agreement, and it comes into force in 29 December 2022. Which among the following statements are correct in relation to this? So इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल रिलेशंस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. एक्टा, ECTA, एक्टा. Let us read about एक्टा. पढ़िए. India and Australia have entered into an economic cooperation and trade agreement, ECTA. ECTA was signed last year on 2nd April 2022. Agreement has come into force on 29 December 2022. तो 2022 अप्रैल में साइन करे और 29 दिसंबर 2022 को फोर्स में आया. रेटिफाई में भी हो गया, फोर्स में भी आ गया. वही साल में साइन हुआ, वही साल में फोर्स में आ गया.
उसके बाद Yes, sir. India's imports from Australia amount to 17 US dollar billion, while its export to Australia amount to 10.5 US dollar billion. तो इंपोर्ट ये क्या है? इंपोर्ट कितना है? 17 US dollar है. तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना है? इंपोर्ट माने पैसे जा रहे, एक्सपोर्ट माने पैसे आ रहे. इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, वी आर इन डेफिसिट. इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, वी आर, क्या मतलब इसका? डेफिसिट में है अपन. अगर इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, if import is greater than export, then it will be what? Depreciation. डेफिसिट का उल्टा क्या होता? सरप्लस. सरप्लस होता. तो इंडिया सरप्लस में है, डेफिसिट में है. जा रहे पैसे 17, आ रहे 10. Deficit. इंडिया इज इन डेफिसिट. ठीक है, नेक्स्ट. India's imports from Australia are primarily 96% raw material and intermediate goods. इंडिया इंपोर्ट क्या करता? प्राइमरीली मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. एक्सपोर्ट क्या होता? फिनिश गुड्स, दैट इज कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, ये मालूम हो गया, डेफिसिट में है अपन. उसके बाद ये जो India एक्स्ट्रा also हुआ, extra किस में होने वाला है ये? major areas trade and goods, service, origin, technical barriers to trade, and sanitary and phytosanitary movements of trade natural remedies. persons. ये सब है. India on all tariff lines access to Australian market with zero customs duty. तो ये फायदा होने वाला है. ठीक है, अपना जो डेफिसिट में है वो अपना फायदा होता. रिजल्ट इन एक्सेस टू जीरो ड्यूटी. एक्सेस टू जीरो ड्यूटी रहेंगी और 5 साल तक अपने को जीरो ड्यूटी लाइन्स मिलती, 5 साल तक. ठीक है. Yes. ऑस्ट्रेलिया इज ऑफरिंग ड्यूटी एलिमिनेशन 100% ऑफ इट्स टैरिफ लाइन. तो क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़िए. India has a trade surplus with Australia. No, स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग है? wrong है. Deficit सरप्लस with नहीं है, Australia. उनका डेफिसिट में है. नेक्स्ट. India's import majority finished goods and Australia. Goods from इंडिया Australia. इंपोर्ट्स फिनिश गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? इंडिया जो एक्सपोर्ट करता वो हाँ, क्या है? फिनिश गुड्स है. इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स है. इंडिया एक्सपोर्ट्स आना था बट इन्होंने दिया इंपोर्ट्स बोल के दिया. नेक्स्ट. ये रॉन्ग है. सी. Indian goods on all tariff lines to get access to the Australian market with zero. ऑल टैरिफ लाइन थोड़े टैरिफ लाइन. 100% of its India offer Australia is offering duty elimination on 100% tariff lines बोल रहा हूँ. 100% माने पूरा. 100% means total. ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट पढ़ो, डी वाला. हेलो, Yes, sir. चले गए शायद. I think she was disconnected. ठीक है. So this agreement also covers the movement of natural person under aspect. क्या नेचुरल पर्सन है इसमें कैटेगरी में? Does it have a natural person? Yes, sir. Yes, No. sir. Movement of Fine. natural person. Teacher, sir. Movement of natural person. That means it is correct.
दैट मीन्स इट इज करेक्ट. सो ए रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, तो ए जिधर भी कैंसिल कर दो, तो बचा आपको क्या आंसर? ओनली सी. तो सी एंड डी करेक्ट है. इंपोर्ट का रॉन्ग था, सी एंड डी इज करेक्ट. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज रीड 18. India recently hosted the first meeting of Governing Board of BIMSTEC Energy Center. In this context, consider the following statement with respect of BIMSTEC. रिस्पेक्ट ऑफ बिमस्टेक. बिमस्टेक के बारे में, दिस इज डेटा अबाउट बिमस्टेक. तो पढ़िए बिमस्टेक. प्लीज रीड. हेलो. India hosted the first meeting of the Governing Board of BIMSTEC Energy Center (BEC) on 27th February 2023. तो क्या है? 27 फरवरी 2023 को बिमस्टेक एनर्जी सेंटर की मीटिंग हुई. Yes. उसके बाद The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is a regional organization that was established on 6th June 1997 with the signing of Bangkok Declaration. तो क्या है ये? बिमस्टेक कब बना? 6 जून 1997 को. कौन सा डिक्लेरेशन? Bangkok Declaration. और एक डिक्लेरेशन देखे थे. कौन सा डिक्लेरेशन देखे थे इससे पहले? नाटो. नाटो कौन सा डिक्लेरेशन से बना? नाटो कौन से डिक्लेरेशन से बना था और कौन से ट्रीटी से बना था? भूल गया बीच. नेक्स्ट 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 पॉइंट. Initially it was known as BIST EC, Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand Economic Corporation. तो ओरिजिनल नाम क्या था इसका? बिस्ट ईसी था. बट बाद में एम से म्यांमार आ गया तो ये बन गया ये बिमस्टेक. Yes, sir. ठीक है. अब कितने मेंबर्स है इसमें? 7 मेंबर 7 है members. जो म्यांमार 1997 में ज्वाइन हुआ था अलॉन्ग विद भूटान एंड नेपाल. Okay. भूटान एंड नेपाल 2004 में है. म्यांमार 1997, भूटान और नेपाल 2004. तो बिमस्टेक का सेक्रेटेरिएट किधर है? Dhaka, ढाका. Bangladesh. क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन. प्लीज रीड. BIMSTEC was established in 1997 with the signing of Dhaka Declaration. Yes. करेक्ट है रॉन्ग है? कब बना था ये? 1997 सही. Let us 1997 सही. कब बना? 1990 जून 6 जून 1997. Yes, करेक्ट है sir. स्टेटमेंट? करेक्ट है But स्टेटमेंट? नहीं सर, नहीं Bangkok wrong है. But उन्हें ढाका डिक्लेरेशन नहीं है, Bangkok डिक्लेरेशन. तो क्या ढाका डिक्लेरेशन रॉन्ग है? दैट मींस इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. Wrong. Yes, sir. बैंकॉक डिक्लेरेशन. ओके नेक्स्ट. Bangladesh, Bhutan and Nepal are member of this organization. ओके. बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है. नेपाल है. Myanmar. बांग्लादेश है शुरू से. Yes, sir. नेक्स्ट. हेडक्वार्टर किधर है? Headquarter काठमांडू. Dhaka. ढाका में है ना सर. हेडक्वार्टर ढाका. काठमांडू क्या है? वही काठमांडू. काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल सर. नेपाल. तो सी इज रॉन्ग. तो आपको मालूम है
ए रॉन्ग है, तो जैसा ए रॉन्ग है, ए में क्या क्या है, 1 है, 3 है और 4 है, एलिमिनेट हो जाता, तो करेक्ट क्या है, खाली Only two. ओनली 2, Two. B only. करेक्ट आंसर इज बी Two. ओनली। ठीक है, B only. नेक्स्ट 19। Recently, in Henley Passport Index, India stand at the 85th position. In this context, consider the following statement. तो Henley इंडिया की पोजीशन क्या है, 85th पोजीशन है इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पहले पढ़िए, पढ़िए क्या है। Henley Passport Index is prepared by London-based Henley and Partners, a global citizenship and residence advisory firm. तो क्या हेनले प्रपोज बाय लंदन बेस्ड हेनले एंड पार्टनर्स, ए ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म। ठीक है, उसके बाद क्या है, कौन देता है पासपोर्ट इंडेक्स, लंदन बेस्ड हेनले एंड पार्टनर। नेक्स्ट, Index gather data from the International Air Transport Association, which manage inter-airline cooperation globally. इंटर एज कैलकुलेशन ग्लोबली, आयाटा। ठीक है, नेक्स्ट, It covers 227 destination and 199 passports. 227 destinations and 199 passports. Next, Henley Passport Index rank passport based on their power and mobility. मोबिलिटी माने क्या पासपोर्ट है, कितने वो है, कितने पावरफुल है आप। नेक्स्ट, The strongest and defined by the number of countries people with the passport can visit visa free visa on arrival according to the Henley website. तो क्या है पासपोर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कैसा आप डिफाइन करते, आपके पास अगर पासपोर्ट था, खाली टिकट लेके चले जा सकते क्या आप, खाली टिकट लियो चले जाओ, या तो आपको वीजा उधर गए वाले मिल जाता, क्या वैसे जा सकते क्या, उसके बेस पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बोल के बोल रहे। अब पूरे वर्ल्ड में कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, Top Top 3 three कौन है? strongest passport: Japan, Singapore, South Korea. जापान नंबर 1 पे, जापान 193 कंट्रीज में किधर भी पासपोर्ट है तो चले जाओ, उधर गए बाद में आपको एयरपोर्ट पे आपको क्या है वीजा मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगापुर और साउथ कोरिया के लोग कितने कंट्रीज में जा सकते हैं, 192. 192 कंट्रीज। जर्मनी एंड स्पेन 90. 190 कंट्री। अब इंडिया का पोजीशन क्या है पासपोर्ट, किसके पास पासपोर्ट नहीं है अभी तक, बना है पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है, नहीं No, बना। sir. कोई नहीं बना अभी तक, बना है सर, जाके भी आए। तो कभी जाना नहीं है बोल के नहीं बना है क्या, घर से निकलते नहीं तो कहाँ से जाते बोल के, बना के रखिए, इम्पोर्टेंट है। जाते तो तो इंडिया का बनेंगे पोजीशन क्या है, 85th position. लास्ट ईयर 87 पे था, 2023 में 85 पोजीशन आया, 2022 में 87। Okay, owing to increased migration, Indian passport holders have lost visa-free access to Serbia. तो सर्बिया वाले इंडिया के लोगों को रोक दिया आने के बाद, पहले सर्बिया को जा सकते थे आप। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लेटेस्ट कौन सी कंट्री है जो इंडिया को वीजा फ्री ट्रैवल और वीजा ऑन अराइवल कैंसिल कर दी, कौन सी कंट्री है, सर्बिया। अब इंडियन पासपोर्ट कैन ट्रैवल अप टू वीजा फ्री टू 55 countries. 55
destination. 59 destination. 59 डेस्टिनेशन को आप वीजा फ्री जा सकते हैं। आप पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो भी, पासपोर्ट है तो आप, वीजा नहीं है तो भी एयर कंट्री से जा सकते हैं। भूटान को जाना चाह रहे हैं आप लोग? भूटान No को, possible. इंडोनेशिया, मकाऊ, मालदीव, Yes, sir. नेपाल। अब नेपाल में क्या होता, यूपी का बॉर्डर है नेपाल, इंडिया में कितना है पेट्रोल का रेट? 110 रुपए। इंडिया की करेंसी नेपाली करेंसी से ज्यादा है, तो इंडिया वाले क्या करते हैं, यूपी में जो लोग है ना, नेपाल के बॉर्डर आराम से जा सकते हैं, नेपाल को उधर से जाके पेट्रोल भरा के लाते इंडिया में, सस्ता पड़ता है। यूपी में जो लोग हैं उधर, नेपाल, श्रीलंका को जाना चाह रहे, थाईलैंड, कीनिया को तो पक्का जाते हैं, मॉरिशस, सेशल्स, जिम्बाब्वे, युगांडा, ईरान एंड कतर को आप वीजा ऑन अराइवल जा सकते। ठीक है, वीजा फ्री ट्रैवल और वीजा ऑन अराइवल, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ो। Japan Japan has is the the strongest passport in the world. yes, Japan has the strongest passport in the world. Shouldn't right or wrong? Right. कितने कंट्री जा सकते हैं? 190. 193 192. कंट्री। लाइफ में कम से कम 2 कंट्री को पैसा भी जाते हैं, एक जापान है, एक जर्मनी है। एक जापान है एंड 1 जर्मनी। ये 2 कंट्रीज ऐसे है जो इन लोग पूरे खत्म हो गए, पूरे को खत्म हो जाते हैं हर बार, लेकिन फिर 10-20 साल में फिर खड़े हो जाते। जापान अच्छा। इज एन आइलैंड, उन लोगों के पास जैसा अपन में बारिश पड़ती है वहां वैसा अर्थक्वेक आते, जी। अच्छा। लेकिन फिर अर्थक्वेक आता, तबाही होती, फिर अपनी दुनिया में लग जाते हैं लोग। अच्छा। जैसे जितनी देर तबाह होते उतनी जल्दी फिर अपने को रिकवरी भी कर लेते। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में तबाह हुई, खत्म हो गई थी 1918 में, फिर 20 साल के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 में फिर खड़े हो गई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह हो गई, फिर 30 साल में 1970 आते आते 1990 आते आते इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये 2 कंट्रीज है जो 2 बार तबाह होते और फिर उसी तेजी से खड़े हो जाते लोग, जर्मनी एंड जापान। दिस इज अ यूरोपियन कंट्री, दिस इज अ एशियन कंट्री। ये 2 कंट्रीज के ऊपर जाके आना तो सी उन लोगों के लोगों का कल्चर कैसा है काम करने का। जापान में अगर उन लोगों को हड़ताल करना है, उन लोगों का खुश नहीं है कंपनी से, तो अपने लोग क्या करते, हमारी मांगे पूरी करो बोल के पूरे को काम बंद कर देते, भूख हड़ताल बढ़ जाते। जापान में क्या करते, 4 बजे जाना है उन लोगों का, 4 बजे दिन खत्म हो जाता, 5 बजे दिन खत्म हो जाता, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते, 9 बजे तक काम करते। उससे लोग समझ जाते, कंपनी समझ जाती कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा बोलते। अपन करते वैसा नहीं। जो काम हो रहा वो भी रोक दे के बढ़ जाते, एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर देते। तो अपने पास वो कल्चर 100 साल के बाद आता। नेक्स्ट बी स्टेटमेंट बी। India's rank has improved from last year. Yes or no? Yes. Yes, 87th of 85. सर्बिया का चले गया बट रैंक इम्प्रूव हो गया। 87 था, क्या हो गया? 85 है। 86 हो गया। नेक्स्ट। Yes. The number of countries the holder of an Indian passport can travel without a visa has increased over the last year. नो, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हो गया। सर्बिया हैज बीन रिमूव्ड, सर्बिया को निकाल दिए, या सर्बिया अपने को निकाल दिया लिस्ट में। सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। सी किधर है वो, उसको कैंसिल कर दो, एक ही चीज। नेक्स्ट
Indian passport holders have lost visa free across the sea. Access. वीजा फ्री एक्सेस टू सर्बिया, स्टेटमेंट राइट है, Yeah. आंसर इज ए बी डी, करेक्ट आंसर इज 19 वाला डी, See. 3 19 वाला 3 ए बी डी, Yes, sir. 3 रॉन्ग है, ठीक है। Yes, sir. So we complete 19 questions. Clear a point? So Yes, sir. this is the current affairs for March to April. 4 महीने के करंट अफेयर्स है, थोड़े थोड़े दिसंबर के भी इंक्लूडेड है, बट मेजरली मार्च टू अप्रैल. Most important 150 questions. So till 24th we'll do this only. ठीक है, करंट अफेयर से आपको पॉलिटी, इकोनॉमी सब कवर हो जाता है. ओके, फिर उसके बाद में